Okay, so now if you people remember what has happened in the last class, then in the last class I was talking about your semiconductors. Do we remember this? Yes, sir. In the semiconductors, I told you about your intrinsic semiconductors. Now, what were these intrinsic semiconductors? I told you, sir, pure semiconductors are otherwise called as nothing but intrinsic semiconductors. That means इसमें किसी तरह का डोपिंग हम लोग नहीं किए रहते हैं, इसमें कोई किसी भी टाइप का इम्प्यूरिटीज हम लोग बाहर से ऐड किए हुए नहीं रहते हैं. प्योर सेमीकंडक्टर्स जो हमारे पास रहता है, we call them nothing but are intrinsic semiconductors. Okay, and the semiconductors which we make artificially by doping or by adding impurities into it, we will call it as extrinsic semiconductors. Okay, extrinsic semiconductors matlab impure semiconductors. That means semiconductors in which doping has taken place. अगर आप लोगों को याद है तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था the process of adding impurities, the process of adding suitable impurities into your intrinsic semiconductors in order to increase their conductivity is called as nothing but your doping. किसी Yes, को sir. प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. Very good, very good. Right, sir. We understand that extrinsic semiconductors are those impure semiconductors, those semiconductors in which a process called as doping has been done. और ये doping कैसा होता है? क्या होता है ये doping? एक suitable impurity that may be an electron rich impurity या नहीं तो एक electron deficient impurity लेके हम लोग क्या करते हैं सर, उसे डोप करते हैं. उससे क्या होता है सर? उससे बहुत ही बेहतरीन चीज होता है. हमारा जो सेमीकंडक्टर जो लेस कंडक्टिव था वो अभी उसका कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाता है. तो फिर से हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं. तुम्हारा लास्ट क्लास में जो किए थे उसको फिर से एक बार देखते हैं अच्छे से समझने के लिए. ठीक है, चलिए. तो सर, इन द लास्ट क्लास वी हैव वेरी प्रॉपर्ली सीन सिलिकॉन 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 सिलिकॉन. अगर मैं ले लेता हूं तो मैंने क्लियरली बताया था लास्ट क्लास में दैट ईच सिलिकॉन इज अटैच्ड विथ 4 other silicons. Okay, each silicon is bonded with 4 other silicons. Okay, तो आप लोग आराम से ऐसे सोच सकते हैं, हर एक सिलिकॉन जो है वो 4 अदर सिलिकॉन्स के साथ अटैच्ड है ऐसे. बिकॉज सिलिकॉन बिलोंग्स टू द 14th ग्रुप, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस सेल में. तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये 4 सिलिकॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपना स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए. आई होप इसमें कोई इश्यू नहीं है किसी को. No, sir. Now what we are doing is we are trying to introduce a electron rich impurity. याद रखिए, electron rich impurity. देखिए, what is the meaning of electron rich impurity सर? सर देखिए, मेरा जो सिलिकॉन है वो 14th ग्रुप का एलिमेंट है. तो सर मैं अगर 15th ग्रुप का एलिमेंट को ऐड करूंगा एज इंप्यूरिटी तो इसे मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी. उसको क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी. तो चलिए देखते हैं क्या होगा. से फॉर एग्जांपल मैंने फास्फोरस को डोप कर दिया, मतलब फास्फोरस यूज करके मैंने डोप कर दिया. इफ आई हैव एडेड फास्फोरस in silicon as impurity, okay, now what will happen? Now the silicon which is sharing 4 electrons with one another among themselves, now once phosphorus has entered here, each silicon will share one electron with phosphorus. Each silicon will share one electron with phosphorus, and 1 electron of phosphorus will remain as it is, unbonded. Okay, 1 electron of phosphorus will remain as it is, it will not undergo bonding. Any problem with this? No, sir.
due to this what is happening is, sir, due to this what is happening is, very clearly it is visible to us that हमारा phosphorus के ऊपर एक अनपेयर्ड एंड अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जा रहा है। ओके, क्योंकि फास्फोरस पेंटावेलेंट है, मतलब फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हर बार इसको सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए, और 5th इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री बच जा रहा है। ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इन द 5th प्लेस ओवर हियर, योर सिलिकॉन, पूरा का पूरा सिलिकॉन जो कंपाउंड है मेरा अभी, इस पूरा का पूरा को मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा, ओके ध्यान से देखिए, मैं अगर यहाँ पे नेगेटिव प्लेट और यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव प्लेट अगर मैं दे देता हूं, तो क्या हो जाएगा सर, माय इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेरा, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। यस और नो, टेल मी। Yes, sir. दैट Sir. मीन्स पहले Yes, जब sir. सिर्फ सिलिकॉन था, सिर्फ प्योर सिलिकॉन था, देयर वाज नो फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर देयर। When I had pure silicon, there was no free electron over there. But now, when I have doped it, when I have added phosphorus into it, now that bonding has taken place, there is free electron, and due to that, the semiconductor now is conducting. So यहाँ पे मेरा जो करंट कैरिंग एंटिटी है, मतलब द कैरियर ऑफ करंट जो है वो कौन हो जाता है, मेरा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड। दैट इज व्हाई सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। व्हाट डू वी कॉल इट एज, एन टाइप सेमीकंडक्टर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. Right, so once that we have understood this n type semiconductor, so n type कहां से आया, n type negative type, that means यहाँ पे जो मेरा चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स है, एंड एज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इसीलिए हम लोग इसको n टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो n टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है बेटा, सर n टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है जब हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी के साथ डोप करते हैं। जब हम लोग डोपिंग करते हैं, लेकिन किसके साथ डोपिंग करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी के साथ जब हम लोग डोपिंग करते हैं, तब हम लोगों को n टाइप सेमीकंडक्टर रिजल्ट होता है। I hope everyone has understood this. Now we will move a little more ahead and we will try to understand something else. Say for example, अभी मेरे पास फिर से सिलिकॉन 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 है मेरे पास, and this time what we will do, you know, this time we will try to dope it with an electron deficient impurity। मतलब हमारे 14th ग्रुप का एलिमेंट को अभी हम लोग एक ऐसा एलिमेंट के साथ डोपिंग करेंगे जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सिलिकॉन से भी कम होगा। समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. ओके, तो अब हम लोग, तो हम लोगों को पता है that silicon is a 14th group element. Now we will dope it Okay, say we are having a 14th group element. Okay, now if I dope it with a 13th group element like aluminium, तो देखिए क्या होता है, एल्यूमिनियम को लाया मैंने, ओके, तो एल्यूमिनियम को ला के जैसे ही मैंने यहाँ रखा, एक एल्यूमिनियम के साथ ये हो गया शेयरिंग, ओके, एक और हो गया शेयरिंग इधर, एक और हो गया शेयरिंग इधर, बट यहाँ पे सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन एल्यूमिनियम के पास वैकेंट स्पेस है, एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. इन द सेम वे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, फिर से यहाँ पे
ये बनाया एक बॉन्ड, ये बनाया एक बॉन्ड, ये बनाया एक बॉन्ड, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है और यहाँ पे एक ये बच जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं होल। ये वैकेंट स्पेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? होल्स बोलते हैं, होल। ओके, सो फिर से एल्यूमिनियम ले लेंगे, फिर से सेम होगा। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। Now when I apply a positive and a negative terminal, okay, now when I apply a positive and negative terminal, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो जंप कर जाएगा इस होल पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा। फिर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा नेक्स्ट होल पे, ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और होल मूव करेगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, फिर से एक बार बताता हूं, ध्यान से देखिए। ओके, से यहाँ पे भी एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एक होल है, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। नाउ व्हाट विल हैपन, यू सी, electrons will start shifting on the opposite direction। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा अदर डायरेक्शन में। तो देखिए, तो जब इलेक्ट्रॉन ने इस होल पे जंप किया तो यहाँ पे होल आ गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। नेक्स्ट क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होल आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहाँ पे होल पे। तो एक तरीके से आप लोगों को कैसे दिखेगा, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एट द सेम टाइम आप लोगों को ऐसे दिखेगा, द होल इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डू यू पीपल एग्री विद दिस? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes. So that is why this type of सेमीकंडक्टर जो हम लोग 13th ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स को ऐड करके जो बनाए हैं उसे हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। दिस इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। एंड व्हाई इज इट पी टाइप सर? बिकॉज ये जो होल्स हैं, ओके, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए था लेकिन नहीं है, वैकेंट है। तो होल्स क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। डज एवरीवन एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So with this we have Yes, sir. understood semiconductors, we have understood both p type and as well as n type semiconductors, right? Now why, when we come to our applications of semiconductors, remember sir, semiconductors plays a very important role in our technology advancement and in all of our microprocessors and chips. If you understand, okay, हमारे जो यूएस है, यूएस में हम लोगों के पास है something called as the Silicon Valley. Now why is it called like that? Because हमारा जितने भी microprocessors, chips, microcomputers, big computers, mixers, grinders, your telephones, anything, the smallest to smallest electronic equipment to the largest electronic equipment which you see has got microprocessors and microchips in them, and they are made up of nothing but semiconductors. तो semiconductors का हमारे आजकल के दुनिया में एक बहुत ही vast application है। तो semiconductors के बारे में अभी और भी बहुत कुछ आप लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर में, ओके, सेमीकंडक्टर्स के बारे में, जहां पे आप लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ोगे, ट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ोगे आप लोग, बहुत सारे ऐसे हमारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे डायोड्स के जो आप लोग देखेंगे, ओके। Yes, sir. So what are the uses of semiconductors? अगर किसी ने पूछा तो तुम लोग बोलोगे, sir, semiconductors plays a very vital role in all of our microprocessors, microchips and our computers, and semiconductors are used to make, okay, semiconductors are used to make diodes, and diodes का application तो हमें पता है। देखिए,
जितना भी एलईडीज हम लोग यूज करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स, तो ये डायोड्स ही तो है, लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो ये डायोड्स कहाँ से बनते हैं? पीएन जंक्शन डायोड से बनते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को साथ में मिला के बना जाता है पीएन जंक्शन डायोड। तो डायोड मतलब दो सेमीकंडक्टर्स को हम लोग साथ में जोड़ के बनाते हैं। ओके, देयर आर मेनी अदर एप्लीकेशंस ऑफ योर डायोड्स लाइक दिस। तो सिंपली आप लोग वो एप्लीकेशंस को थोड़ा बहुत देख लेंगे। ओके, सो हम लोगों ने बता दिया आप लोगों को पी टाइप, एन टाइप। ओके, एंड दे आर आल्सो यूज्ड इन, आप लोग अगर पीएन जंक्शन डायोड्स के बारे में देखेंगे, वो रेक्टिफायर्स में भी यूज होते हैं, वो हमारे ट्रांजिस्टर्स में भी यूज होते हैं, वो यूज होते हैं हमारे एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो बहुत जगह पे हम लोग इन्हें यूज करते हैं। बोलो बेटा, कोई डाउट है? No, sir. Okay, now in your textbooks we have a particular statement over there which you have to underline. Typical compounds of group 13 and 15 are, okay, page number 27 old textbook में, new textbook में पता नहीं कौन सा पेज होगा, applications of n type p type semiconductors में देखो। applications of n type p type semiconductor, उसमें सेकेंड पैराग्राफ का 4th लाइन में देखिए। Typical compounds of group 13-15 are INSB, that is indium antimony, and ALP, aluminium phosphide, gallium arsenide, okay, GAS, okay, these are 13-15 group elements। तो तुम लोगों को कोई पूछ सकता है what is the meaning of 13-15 group elements, 13-15 elements, ऐसे what is the meaning of 13-15 group elements? Means sir, here 13 group elements and 15 group elements are reacted together to make compounds। तो examples में आप लोग लिख देंगे sir indium, okay, antimonide, aluminium phosphide, and then your gallium arsenide। ये आपके examples आ जाएंगे। दिख गया सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13-15 ग्रुप एलिमेंट्स एंड 12-16 ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पूछ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 13-15 एलिमेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12-16 एलिमेंट्स? बहुत सिंपल है सर। 13-15 एलिमेंट्स मींस 13 ग्रुप एलिमेंट्स आर मिक्स्ड एंड रिएक्टेड विद 15 ग्रुप एलिमेंट्स। सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज 13-15 elements। examples are dash dash dash, 3 examples, and 12-16 elements means फिर वहां से तुम लोग 3-4 examples बता दो। Yes, sir. Now let's understand the final thing over here, that is magnetic properties, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया है पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटीफेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, सब कुछ। बस मैं आप लोगों को ये मैग्नेटिक कैरेक्टर क्यों आ रहा है ये मैं बता देता हूं। देखिए सर, हम लोगों को सबको पता है मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अभी फिजिक्स में तो मूविंग चार्जेस तक आए नहीं होगे तुम लोग। गॉस लॉ खत्म हो गया? Yes, Yes, sir. sir. एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ खत्म? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, डाइपोल? हाँ sir. सर। Okay. वो सब खत्म? अच्छा, ओ मतलब फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया क्या? हाँ सर। नहीं सर, ओनली एप्लीकेशन बाकी है। ओनली एप्लीकेशन बचा थोड़ा सा बाकी है। अच्छा ठीक है, तो खत्म हो जाएगा, कोई नहीं। तुम लोगों का 4th चैप्टर में आएगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, वहां पे तुम लोग इसके बारे में पढ़ोगे, राइट? तो मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, एनी चार्ज व्हिच इज हैविंग सम वेलोसिटी, व्हिच इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, चार्जेस जब रेस्ट पे रहते हैं तो उनके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, बट
चार्जेस जब मूव करते हैं तो उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ जाते हैं, राइट। नाउ हमारे बॉडी में और मैटर, जितने भी मैटर है हमारे पास, सारे मैटर में जनरली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं सर? ये मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एन ऑर्बिट, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। नाउ सर, अगर ऐसा बात है तो हमारा बॉडी भी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Yes, sir. Yes, तो sir. ऑब्वियस सा बात है कि सर हमारा बॉडी भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो सर हम लोग क्यों एक आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एक मैग्नेट आता है तो हम लोग अपने आप को क्यों मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, या हम लोग खुद अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? So if that is the case, then how will we answer it? हम लोग इसे आंसर कैसे करेंगे, यही है बात। तो कैसे हम लोग आंसर करेंगे सर? ध्यान से देखिएगा सर। हमारे बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं सर? पेयर अप हो जाते हैं। देखिए हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया, जो भी एलिमेंट्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है वो डायमैग्नेटिक हो जाते हैं, और ये प्योरली मैग्नेटिक होते हैं, वेरी प्योरली मैग्नेटिक होते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. राइट। सो इसीलिए हम लोग स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट या स्पिन क्वांटम नंबर में हम लोग पढ़े थे बहुत ही क्लियरली, sir, whenever we are having electrons entering into an orbit, they will always have opposite spins। और ये opposite spins क्यों थे? ताकि उनका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैंसिल हो जाए। अगर आप लोगों को याद है राइट हैंड थंब रूल हमारे क्लास 10 से फॉर एग्जांपल एक करंट कैरिंग वायर ऐसा है और एक करंट कैरिंग वायर ऐसा है, तो हम लोग क्या करेंगे? अपना थंब को रख देंगे हम लोग in the direction of your current, and then we will curl our fingers in the direction, and that direction will be nothing but the direction of magnetic field। yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोग देखेंगे जैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट में चेंज कर देता हूं, मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें लगेगा जैसे मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन, और यहाँ पे हमें लगेगा मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन। तो देखिए ये आउट ऑफ द प्लेन, ये इनटू द प्लेन, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ। यहाँ पे हमें लगेगा इनटू द प्लेन, यहाँ पे लगेगा हमें आउट ऑफ द प्लेन, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग इज द magnetic field when electrons are getting paired up is going to get cancelled out with each other। Yes, sir. That is why pairing of electrons will take place। This brings an end to our chapter of solid state। okay, तो बहुत लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व किया, इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत कुछ सॉल्व किया, और बहुत लोगों ने मुझे भेजा है, उसमें से बहुत लोगों का बहुत कुछ डाउट्स भी है। तो आप लोग एक एक करके मुझे डाउट्स बताएंगे, मैं उन्हें क्लियर करते जाऊंगा। ठीक है, चलिए। यस Sir, 1.2. 1.2। चलिए सर 1.2 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का। What makes a glass different from a solid such as quartz? Under what conditions could quartz be converted into glass? Okay, now we all know glass is amorphous solid। yes or no? Yes, Yes, sir. sir. And quartz is a crystalline solid। Yes, sir. Quartz is a crystalline solid। okay, we all know that quartz is a crystalline solid and glass is an amorphous solid। now remember sir, molten glass को, okay, molten glass को अगर आप लोग सडन कूलिंग कर देते हैं, सडन कूलिंग, तो वो बन जाता है क्वार्ट्ज। मोल्टन ग्लास को
सडन कूलिंग कर देते हैं तो वो एक सॉलिड बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्ज। तो इसमें तुम्हारे जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो सॉलिडिफाई हुआ है, ग्लास जो सॉलिडिफाई हुआ है सर, वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। बट वही अगर आप लोग स्लो कूलिंग करते हैं, अगर आपके पास जो भी ग्लास है, मोल्टन ग्लास है, उसको अगर स्लो कूलिंग करते हैं तो वो क्या बनता है, एक एमरफस सॉलिड बनता है जिसे कि हम लोग बोलते हैं ग्लास। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. सबसे पहले Yes, व्हाट sir. मेक्स ग्लास डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज बोलने से, क्वार्ट्ज is a crystalline solid whereas glass is an amorphous solid. Next बोल रहा है under what conditions quartz could be converted into glass. Okay, if you heat quartz and if you allow it to cool down slowly, then it will get converted into glass. But if you cool it down suddenly, then you will get it nothing but your quartz. ध्यान से देखिए, क्या यही दिया हुआ है हम लोगों को? Yes, sir. हाँ, तो यही मैं उस दिन क्वेश्चन में देना चाह रहा था, बट बाय मिस्टेक वहां पे ना क्वार्ट्ज ग्लास करके दे दिया था, इसीलिए उस बार ना उस क्वेश्चन में गलती हो गया था। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट Sir, 16 number, sir. 16 नंबर, यहाँ पे चैट में थर्ड नंबर क्वेश्चन डाउट पूछ रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए सर, ये इनमें से कौन से आयनिक है, कौन से मेटेलिक है, कौन से मॉलिक्यूलर है, कौन से नेटवर्क है और कौन से एमरफस है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना पता करना है कि इनमें से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। तो देखिए, नंबर 1 टेट्राफॉस्फोरस, नंबर 1 टेट्राफॉस्फोरस डेकॉक्साइड। आप लोग बताइए ये क्या हो सकता है? Molecular crystalline solid. Molecular, sir. बिकॉज ध्यान से देखिए, बिकॉज द मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज सो लार्ज। दिख रहा है कि नहीं? टेट्राफॉस्फोरस, 4 फॉस्फोरस के साथ आपका डेकॉक्साइड 10 ऑक्सीजन्स, तो ये हम लोगों को दिख रहा है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, बिकॉज यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल है, ओके, और एक लार्ज मॉलिक्यूल है। ओके, बहुत अच्छा बात। Yes, sir. सेकंड वाला एमोनियम फॉस्फेट, क्या दिख रहा है आप लोगों को? Sir, ionic. आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, वेरी गुड। नेक्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड, क्या दिख रहा है? Sir, network है, sir. ये नेटवर्क सॉलिड है जो कि हम लोगों को ऑलरेडी एग्जांपल्स में दिया हुआ है। I2 आयोडीन, Molecular. ये molecular है, sir. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, वेरी गुड। नेक्स्ट P4 फास्फोरस, Sir, ये भी molecular है, sir. ये भी मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। प्लास्टिक, Sir, amorphous. प्लास्टिक इज एमरफस। एग्जाम्पल्स में देखिए तो प्लास्टिक दिया हुआ है एमरफस में। ओके, उसको साइड में रखिए। नेक्स्ट ग्रेफाइट, Sir, network. नेटवर्क। ब्रास, Sir, metallic है, sir. मेटालिक, वेरी गुड। रुबिडियम, Sir, ये भी metallic है. मेटालिक। लिथियम ब्रोमाइड, Sir, ionic. सिलिकॉन, Sir, network है, sir. नेटवर्क सॉलिड है। सर, तो अभी जितना भी यहाँ पे हम लोगों ने लिया और इन्हें आंसर किया, आप लोगों का क्वेश्चन जो भी डाउट था, तो वो यही होगा कि सर हम लोग गेस कैसे कर सकते हैं या हम लोग इसे सोच कैसे सकते हैं। आप लोगों को सिंपली यही एज्यूम करना है या समझना है कि सर मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो कौन है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ग्रेफाइट में कार्बन है, वो नेटवर्क सॉलिड बना रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ब्रास में मेरा होमोजीनियस मिक्सचर है 2-3 मेटल्स का, तो इसीलिए ये मेटलिक सॉलिड हुआ। तो इस तरह से हम लोग जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिंपली उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का टाइप को देख के हम लोग समझ सकते हैं कि वो कौन सा होगा।
क्या ये क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. अंशिता? Yes, sir. ओके चलिए, तो नेक्स्ट मुझे 13 नंबर पूछा है किसी ने, 13 नंबर 14 नंबर दोनों डाउट आया है, देखते हैं। 13 नंबर, नियोबियम। नियोबियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दे दिया, बीसीसी दे दिया। ये देखते ही आप लोगों को क्या समझ में आया सर? सर z equals to 2. वेरी गुड वेरी गुड, z is equals to 2 समझ में आया। इफ डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी दे दिया है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए बहुत अच्छा बात। आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, मतलब r is equals to question mark, ओके। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम यूजिंग इट्स एटॉमिक मास। हमें एटॉमिक मास दे दिया है, मतलब A दे दिया है, दैट मींस हमारा कैपिटल M दे दिया है, इनडायरेक्टली कैपिटल M एटॉमिक मास दे दिया है हम लोगों को 93U। ओके 93U। क्या आप लोगों को मैंने ये ट्रिक बताया था कि नहीं बताया था? ध्यान से देखिए, हम लोगों को सर क्वेश्चन से तो बहुत ही क्लियर है, इस पूरा चैप्टर में एक ही तो फॉर्मूला है, ZM by A क्यूब इंटू NA। किसी को कोई इशू? नो सर। No, sir. नो सर। ये एक एटम का मास है, तो अगर हम लोग 93 ग्राम्स लिखेंगे तो हमें कितने एटम्स का मास? 1 मोल का मास। तो हम लोग कैसे लिखेंगे सर इसको? देखिए तो Z के प्लेस में हम लोग लिख देंगे 2। ओके 93 ग्राम्स जब मैं लिखूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 93 इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट, दैट इज 6.022 × 10⁻23, और नीचे आ गया A क्यूब इंटू तुम्हारा एवोगैड्रोस कांस्टेंट Na। क्या हमारा Na कैंसिल हो जा रहा है बेटा? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। ओके अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या हम लोगों को डेंसिटी भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ यस है, सर। तो एक काम करते हैं, ए क्यूब को ले जाते हैं उस तरफ, 2 इंटू 93 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको ले आते हैं इधर। अब A क्यूब, बताइए सर बीसीसी में A और R के बीच में हमें रिलेशनशिप पता है कि नहीं? बीसीसी Yes, के sir. लिए कितना Yes. है? 4/√3r सर। A is equals to 4/√3r। क्या सबको याद है ये? Yes, sir. यस सर। कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं यस सर, बाकी सब सो रहे हैं। देखिए मेरे बोलने के बाद भी किसी ने यस सर नहीं बोला। Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ एक ने बोला, मतलब बाकी सब सो रहे हैं। छी 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 छी, इतना बोलने के बाद भी किसी ने यस सर नहीं बोला, मतलब सब गधे हैं। Yes, sir. छी छी छी, a class with no response। ओहो ओके चलिए, तो a is equals to 4/√3r हम लोगों को पता है। अब ना हमारे पास दो चॉइस है बेटा, आप लोग ध्यान से देखिए। या तो आप लोग क्यूब रूट इसका निकाल दीजिए, जो हमारे पास है 2 इंटू 93, दैट मीन्स ये आ जाएगा 2 3 6, 2 9 18, 18600 डिवाइडेड बाय 855। या तो आप लोग इसका क्यूब रूट निकाल के a पता कीजिए और उस a का वैल्यू को यहां पुट करके आप r निकालिए, नहीं तो यहीं पे a के प्लेस में 4/√3r करके उसको क्यूब करके उसके बाद क्यूब रूट निकालिए। जो भी आपका मर्जी है, मुझे जो लगता है ये आसान है, पहले a निकालना फिर उसके बाद r निकालना। तो
क्यूब रूट निकालना है हम लोगों को 18600 का। कितने लोगों को आता है निकालना? एटलीस्ट यूजिंग ए कैलकुलेटर कितने लोगों को आता है निकालना? Yes, sir. Yes, sir. बस कैसे निकालते हैं? सुनाई दे रहा है आवाज? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। कैलकुलेटर, अरे यार ये अपडेट मांग रहा है। एक मिनट। हाँ, Sir, 57.08. मेरा कैलकुलेटर अपडेट मांग रहा है, तो वो मैं शो नहीं करवा सकता, तो मैं कुछ काम नहीं कर सकता। अब मैं बस व्हाइट बोर्ड ही ला सकता हूँ। चलो, तो बताइए ए कितना आया? आवाज जा रहा है? Yes, sir. निकाल रहे हैं। हेलो, बताइए कितना आ रहा है ए? इससे जल्दी तो मैं ही निकाल लूंगा बेटा। 9.41 9.41 आ रहा है, तो ये आया होगा सेंटीमीटर्स में। सिर्फ 9.41 रे, 10 टू द पावर नथिंग। ध्रुव को पिकोमीटर्स में कहां से आया बेटा? सर कन्वर्ट कर दिया सर उसको। 10 टू द पावर -12 आया? इतना बड़ा नंबर, मतलब इतना छोटा नंबर? सर 10 to the power -2, सर 10 to the power 2 खाली सर। ओ ओके ओके, तो आर आ रहा है। तुम जो वैल्यू बताए ध्रुव, ये आर का वैल्यू है? नो सर, ए का वैल्यू है सर, आर का कुछ और। सर उसका 1.43 इंटू 10 to the power 2 पिकोमीटर आया सर, रेडियस का। आंसर चेक करो करेक्ट आया कि नहीं। यस सर। यस सर, आया है सर उतना। सबको समझ में आया कैसे करना है? This complete chapter is about a simple formula, that is density is equals to Zm by a cube Na। यही तो डिफरेंस है फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, सेकेंड ईयर में आप लोगों का प्रॉब्लम्स कैलकुलेशंस रिलेटेड चैप्टर्स ना पहला 3 ही है। पहला तो छोड़ दो, सॉलिड स्टेट में कुछ है ही नहीं, d इज टू Zm by a cube Na। इसके बाद सिर्फ सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, 3 ही चैप्टर हैं जिसमें आप लोगों का कैलकुलेशंस है। उसके बाद सारे चैप्टर्स जो हैं थ्योरी ओरिएंटेड है, लॉजिक ओरिएंटेड है।
तो वही तो डिफरेंस है आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में हर एक चैप्टर में कैलकुलेशंस थे। ओके राइट, जो भी है समझ में सबको आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा बेटा, नेक्स्ट डाउट क्लियर करूंगा। सर 8 का सेकंड बिट डाउट। करेंगे करेंगे, पहले ये समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके चलिए, तो 8 का सेकंड बिट पूछ रहे हैं और 14th नंबर क्वेश्चन भी पूछा गया था। ओके देखते हैं, दोनों करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग? फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल, टेट्रागोनल फेस सेंटर्ड में कितने यूनिट सेल्स हैं पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अपने चैप्टर में चले जाओ, टेट्रागोनल जो मेरे को दिया हुआ है ब्रेवियस लैटिसेस में, वहां पे चले जाओ आप लोग। वहां देखो टेट्रागोनल आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो उस टेट्रागोनल में पहले देखो कि कितने फेसेस हैं। ऑब्वियस है टेट्रागोनल है, तो 4। कितने फेसेस हैं? कितने फेसेस है बेटा? 6 हाँ? फेसेस। 6 है, 6 फेसेस है, क्यूबॉइड है वो एक, 6 फेसेस सर है। उसमें 4 है सर टेट्रागोनल में। अरे टेट्रागोनल तो तुम्हारा क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर को ही तो टेट्रागोनल बोलते हैं बेटा। ब्रेवियस लैटिसेस को देखो एक बार। यस सर। दिखा सबको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखा वहां पे टेक्स्ट बुक में? यस सर। तो कितने कॉर्नर एटम्स हैं? 8 कॉर्नर एटम्स हैं, जो कि ईच कॉर्नर Yes, एटम sir. 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। हाँ सर। तो टोटल कंट्रीब्यूशन तुम्हारा हो जाएगा वहां पे One. ओ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स। अरे Lattice point. लैटिस पॉइंट्स तो देखो, जहां जहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो लैटिस पॉइंट है। तो 8 कॉर्नर्स में 8 लैटिस पॉइंट्स हैं, हर फेस में एक एक लैटिस पॉइंट है, तो 8 + 6 कितना हो गया? 14 लैटिस पॉइंट्स। 14 हो गए सर। देखिए देखिए, जिन जिन को समझ में नहीं आया देखिए, तो ये मेरा एक क्यूबॉइड है। अब हर कॉर्नर पे ओके ये पूछा कितने लैटिस पॉइंट्स है, जहां जहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा वो लैटिस पॉइंट होता है। तो 8 कॉर्नर्स में 8 एटम्स हैं, तो 8 लैटिस पॉइंट्स हैं, और हर फेस के सेंटर पे एक एक है, 1 2 3 4 और फिर 5 फिर 6। तो टोटली मेरे कितने हो गए? 8 14. + 6 दैट इज 14। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इज 14। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. विभूति हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट, अब हम लोग सॉल्व करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 14 number question, have a look. If the radius of the octahedral void is small r and the radius of the atoms in close packing is capital R, derive relationship between small r and capital R. चलिए बहुत अच्छा बात। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए आप लोग, ओके, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता कैसे है? याद कीजिए, तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ लिए थे, स्क्वायर बाइपिरामिडल था कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ऐसे इसके स्ट्रक्चर, साथ 6 पेयर्स होंगे सर। हाँ स्क्वायर बाइपिरामिडल सबको दिख रहा है? Yes, sir. ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है। ओके बहुत ध्यान से देखेंगे।
वो बोल रहा है कि देखो बेटा, मेरा जो यहाँ पे बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, उसका रेडियस है स्मॉल आर, और जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, उसका रेडियस है कैपिटल आर। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताओ करके बोला। तो चलिए हम लोग अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों को 4 स्फीयर्स अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले 4 स्फीयर ड्रॉ कर लिया। ओके, 4 स्फीयर ड्रॉ करने के बाद उनके बीचों बीच एक और स्फीयर या फिर सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो अब हम लोगों को देखना है कि सर ये जो अंदर में मेरा है, एक मिनट, थोड़ा और बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अच्छे से हम लोगों को दिख जाए। अच्छा, इसमें सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए है क्या? नहीं है। ओके, जो भी है, आप लोग थोड़ा मेरा ड्राइंग पे मत जाइए। ये हो गया मेरा। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो है ये मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जहां पे मैंने रेड डॉट लगाया, और ये मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। ओके, चलिए Yes, अब ध्यान से देखिए। तो अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक क्या है? रेडियस कैपिटल आर। यहां से यहां तक भी रेडियस कैपिटल आर। यहां से यहां तक भी रेडियस कैपिटल आर। यहां से यहां पे भी, यहां से यहां पे भी, यहां से यहां पे भी कैपिटल आर, यहां से यहां पे भी कैपिटल आर, और यहां से भी कैपिटल आर। तो क्या हमें एक स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे? yes sir. ओके, अब देखिए ध्यान से, यहां से यहां कैपिटल आर, यहां से यहां स्मॉल आर, यहां से यहां स्मॉल आर, और यहां से यहां कैपिटल आर। अगर ये भी दिख रहा है हम लोगों को, अब ध्यान से देखिएगा हम लोगों को, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग अभी लिखेंगे सर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दैट इज 2 capital R plus 2 small r whole square is equals to, ये देखिए R 2r plus का R, स्क्वायर, ये साइड और ये साइड, 2R whole स्क्वायर square plus 2R और होल। whole square। दिख रहा है? यस सर। ओके, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। अगर वो तरीका छोड़ के अगर आप लोग कोई और तरीका से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा। There is only one way to solve this. If you are leaving that behind and if you are solving it in any other way, you will not get your answers. Try to understand this. The way to solve it is, देखिए ये क्या हो जाएगा, 4r square 4r square, तो ये कितना हो गया 8r 8r square। एक ही तरीका है सर, 2r plus 2 small r, ये अंडर रूट इधर ले आओ, मतलब स्क्वायर रूट को इधर ले आओ। ओके, दिस इज द ओनली वे। अगर आप लोग एग्जाम में इस ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश की है, आप लोग गए काम से, आपका आंसर फिर नहीं आएगा। पहले ही बोल रहा हूं, ये पर्टिकुलर डेरिवेशन में, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्क्वायर को दूसरे तरफ स्क्वायर रूट बना के ले जाना है, तभी जाके आपका आंसर आएगा। अगर आप स्क्वायर रूट को ओपन कर देते हैं, क्वेश्चन बिकम्स, द इक्वेशन विल बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज आप लोगों को स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर वाला टर्म आ जाएगा, जिसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके, सो 2 into capital R plus 2 into small r is equals to
2√2 into capital R. Any problem? No, sir. तो अब मैं 2 2 2 को कैंसिल कर सकता हूं, तो यहां से स्मॉल r इज इक्वल्स टू, ये कैपिटल R को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 - 1 कॉमन आ जाएगा इनटू कैपिटल R. डिडंट वी फाइंड आउट अ रिलेशनशिप? देखो तो मजा आया कि नहीं? Yes, sir. स्मॉल r इज इक्वल्स टू √2 - 1 इनटू कैपिटल R. तनुश्री बेटा आया समझ में? Yes, sir. बाकी सब लोगों को आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तो कुछ लोग यस सर, नो सर, डाउट सब बोलना भूल गए हैं. सर वो 16 नंबर एक डाउट है सर. बताएंगे. ठीक है, ठीक है. This is not your first year. If you people are not paying attention, बहुत गंदा हो जाएगा आप लोगों के साथ. You have to read very well. ओके मेरा हर एक चैप्टर यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है. जिनको जो डाउट है बार बार रिकॉर्डिंग्स को सुनिए, बार बार रिकॉर्डिंग्स को देखिए. ओके तो आप ही लोगों का फायदा होगा सर. ठीक है, 16 नंबर. यस, 16 number is a very beautiful question sir. 16 number is a very beautiful question. Okay, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, निकल फॉर्म्स एन ऑक्साइड. ओके ओके जो कि एक मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट के वजह से फॉर्म हो रहा है. निकल 0.98, ऑक्सीजन 1.00. दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट यहां पे क्लियरली बोल दिया, निकल एग्जिस्ट एज निकल 2+ एंड निकल 3+ बोल दिया हम लोगों को. तो ये क्लियरली दिख रहा है हम लोगों को कि सर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, जहां पे निकल ना मल्टीपल वैलेंसी शो कर रहा है, +2 +3 शो कर रहा है. तो यहाँ पे पूछा क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल 2+ एंड निकल 3+ आयंस विल एग्जिस्ट. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल 2+ एंड निकल 3+. तो सबसे पहले हमें पता क्या करना है, कितने निकल 2+ हैं और कितने निकल 3+ है, ये पता करना है. तो सबसे पहला चीज ये देखिए, तो क्या मैं निकल 0.98 ऑक्सीजन 1 को निकल 98 इज टू ऑक्सीजन 100 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, पहले ये बताओ. Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज 0.98 1.00 दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो निकल 98 ऑक्सीजन 100. देखिए मैं 0.98 से भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन इजी करने के लिए हम लोग दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई करके एक प्रॉपर नंबर ले आए हैं. अब ध्यान से एक चीज देखिए सर, टोटल नंबर ऑफ निकल एटम्स आर 98, जिसमें से कि लेट अस एज्यूम नंबर ऑफ निकल 2+ बी x. नंबर ऑफ निकल 2+ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x. तो नंबर ऑफ निकल 3+ कितने हो जाएंगे बेटा, 98 माइनस x. यस हो जाएंगे कि नहीं 98 माइनस x? सब लोग देखिए, इफ नंबर ऑफ निकल 2+ हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं, नंबर ऑफ निकल 3+ कितने हो जाएंगे, 98 माइनस x. अब ध्यान से आप लोग एक बात देखिए, निकल का जितना चार्ज है यहाँ पे ऑक्सीजन का भी चार्ज उतना ही है, बिकॉज ये प्लस चार्ज उतना है, ये माइनस चार्ज है, बिकॉज निकल ऑक्साइड पूरा न्यूट्रल है. यस और नो? Yes, sir. तो देखिए, तो ओवरऑल चार्ज ऑन निकल में क्या लिख सकता हूं, +2 चार्ज वाले निकल कितने हैं, x हैं, प्लस +3 चार्ज वाले निकल कितने हैं, 98 माइनस x हैं. दिस इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2. ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, -2, लेकिन हम लोग इक्वेट कर रहे हैं चार्जेस को, मतलब सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर रहे हैं. 2 इंटू कितना है ऑक्सीजन, 100 है. ठीक है, तो दोनों तरफ चार्जेस इक्वल होना चाहिए. तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या दिखेगा हम लोगों को, ध्यान से देखिएगा तो आप लोग, सर 2x + 98 इंटू 3 कितना आ रहा है देखते हैं, 3 8 ज़र
3 8s are 24, 4 2, 3 9s are 27, 3 9s are 27, 28, 29, 294 आ रहा है ना? Yes, sir. माइनस 3x इज इक्वल्स टू 200। तो यहां से देखिए तो x इज इक्वल्स टू 294 माइनस 200, मतलब x इज इक्वल्स टू 94। देखिए तो पता चल गया कि नहीं कितने निकल है हमारे पास? Yes, sir. 94. निकल 2 प्लस है 94, तो निकल 3 प्लस कितने हैं? 4। Sir, 4. ओके, तो अब हमें पूछा है फ्रैक्शन, कितने निकल 2 प्लस के फ्रैक्शन कितने हैं? मतलब x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ निकल 98, मतलब 94 डिवाइडेड बाय 98 इज योर निकल 2 प्लस का फ्रैक्शन, 4 डिवाइडेड बाय 98 इज योर से फॉर एग्जांपल निकल 3 प्लस का फ्रैक्शन। कितने लोगों को समझ में आया? Yes, sir. आया. Yes, sir. यस। Yes, तो sir. इसी चीज को फिर से एक बार आप लोग सॉल्व करेंगे और ध्यान से आप लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके, आज फिर से आप लोग पूरा चैप्टर को कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और हम मिलेंगे कल जहां पे बाकी डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर सॉल्यूशंस। बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? तो Yes, अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए मैं ना जैसे ही बोलता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें, कुछ लोग गायब हो जाते हैं मेरे क्लास में, ओके, लेफ्ट हो जाते हैं इमीडिएटली, जब बोला और लेफ्ट हो जाते हैं। हाउ मतलब रूड दीज पीपल आर, आई डोंट नो, राइट? तुम लोगों का होमवर्क यही है सर, जो बचा हुआ आप लोगों का एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो करेंगे, जो भी डाउट्स है आप लोग कल पूछेंगे, ठीक है? Yes, sir. चलिए, दैट विल बी Yes, इट, Yes. बाय बाय, Thank you, sir. Bye. Yes. वेलकम, बाय।